हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। लंग्स दीज आर लैरिंग्स, ट्रेकिया, द लेफ्ट लंग, right lung, the left lung have two lobes which are separated by oblique fissure, and right lung have three lobes which are separated by horizontal fissure and oblique fissure. And just below the diaphragm is present. तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि वन पेयर ऑफ लंग्स आर लोकेटेड इन thoracic cavity. It is an airtight cavity. अब अगर अपन देखें एयर टाइट कैविटी तो कैसे है, डोर्सली इट कवर्ड बाई वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रली इट हैव स्टर्नम एंड लेटरल हैव रिब्स and below diaphragm. thoracic cavity एक एयर टाइट कैविटी, डोर्सल पर वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल पर स्टर्नम, लेटरल में रिब्स और बिलो और पोस्टीरियर पार्ट में क्या है, डायफ्राम. तो एयर टाइट कैविटी है. द एनी चेंजेस इन द thoracic cavity डायरेक्टली अफेक्ट्स द लंग्स. एयर टाइट कैविटी होने के कारण से अगर इसमें कोई भी चेंज हो रहा है तो उस चेंज से का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आता है, लंग्स पे आता है. तो अगर अपन थोरेसिक कैविटी को देखें तो देखें देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट. एंड सो ऑन. देखें वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम. There are 12 pairs of ribs are present. Out of them, the first 7 pair of ribs are true ribs. First 7 pairs are true ribs. They are dorsally attached with vertebral column and ventrally attached with sternum. The 8th, 9th and 10th 3 pairs are false ribs. Dorsally they are attached with diaphragm and ventrally they are attached with his above rib. 11th and 12th pair, these 2 pairs are floating ribs. Dorsally they are attached with vertebral column and ventrally they are remains free. अब यहां पर देखेंगे there are 2 types of muscles are present between the ribs which may cross to each other. देखो इन रिब्स के बीच में एक दूसरे को क्रॉस करती हुई मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, जिसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स.
तो पहले अपन बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब भी इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, डायफ्राम में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन रिब्स एंड स्टर्नम आर पुश्ड आउटवर्डली एंड अपवर्डली, है ना, आउटवर्डली एंड अपवर्डली, सो दैट diameter of thoracic cavity is increased in dorsoventral axis। ध्यान रखेंगे, जब भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारे रिब्स और स्टर्नम दे आर पुश्ड आउटवर्डली एंड अपवर्डली, सो देन the diameter of thoracic cavity is increased in dorsoventral axis. Next, they are help in inspiration, so that they are also called inspiratory muscles. Inspiratory muscles, and they are internal intercostal muscles, which are helps only during forceful expiration, जिनका रोल कहां पे होगा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में होगा। डायफ्राम, जब भी डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम्स बिकम फ्लैट होगा, एंड द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटीज इंक्रीज इन एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। तो यहां पर अपने को देखो क्या ध्यान रखना है कि थोरेसिक कैविटी इज एन एयर टाइट कैविटी। डोर्सली इट कवर्ड बाई वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाई स्टर्नम, लेटरली बाई रिब्स एंड पोस्टीरियरली बाई डायफ्राम। एनी चेंज इन थोरेसिक कैविटी directly affect the lungs. There are 12 pairs of ribs are present in human. Out of them, first 7 pairs are true ribs. 8th, 9th and 10th pair, the 3 pairs are false ribs, and last 2 pairs of ribs are floating ribs. In between the ribs, intercostal muscles are present. They are external intercostal muscles and internal intercostal muscles. Due to contraction of external intercostal muscles, our ribs and sternum pushed outwardly and upwardly, so that the diameter of thoracic cavity is increased in dorsoventral axis. Dorsoventral axis. They are helps in inspiration, so that the external intercostal muscles are also called inspiratory muscles. The internal intercostal muscles involve only in expiration during forceful breathing, and the diaphragm is a dome-shaped structure. It separates the thoracic cavity to abdominal cavity, यानी thoracic cavity को abdominal cavity से separate करता है, and due to contraction in diaphragm it becomes flat, so that the volume of thoracic cavity is increased in एंटेरो-पोस्टीरियर एक्सिस। तो यहां पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर रहे थे अपन, अभी तो आपको बताया थोरेसिक कैविटी जो एक एयर टाइट कैविटी है। अब यहां पर देखेंगे, द लेफ्ट लंग हैव 2 lobes which are separated to each other by oblique fissure, and right lung have 3 lobes. Right lung have 3 lobes which are separated to each other by horizontal fissure and oblique fissure. Next, each lung is covered by a double membrane called pleural membrane. It's called pleural membrane. The outer membrane is called parietal pleura,
and inner is called visceral pleura. Inner is called visceral pleura. A pleural fluid is filled between both the parietal and visceral membrane. Parietal और visceral membrane के बीच में भरा हुआ फ्लूइड प्लूरल फ्लूइड. Which make frictionless movement of lungs, जो lungs के movement को frictionless बनाता है, and also protect the lungs from external injury. Important, the intrapleural pressure of pleural fluid, the intrapleural pressure is always remains less than the atmospheric pressure, so that negative pressure is generated in lungs. इंट्राप्लूरल प्रेशर हमेशा ही क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहेगा, और इसके कम रहने के कारण से क्या होगा, लंग्स में नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा. समटाइम ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन द सीक्रेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड इज इंक्रीज्ड. दिस डिजीज इज कॉल्ड प्लूरिसी. तो प्लूरिसी में क्या होगा, जब इस फ्लूइड का सीक्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या हुआ, द इंट्राप्लूरल प्रेशर इज इंक्रीज्ड. और जब इंट्राप्लूरल प्रेशर इंक्रीज होगा उस कंडीशन में इट कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी. नेक्स्ट, ईच लंग इज कंसिस्ट विद नंबर ऑफ एयर सैक्स, एंड ईच एयर सैक हैव 3 to 4 alveoli. Each air sac have 3 to 4 alveoli, which are the site of diffusion of oxygen and carbon dioxide. Alveoli, and we can say that they are the structural and functional unit of lungs. The wall of alveoli is thin, consist with squamous simple epithelium with rich supply of blood. देखें, इनकी जो वॉल है वो स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियम से बनी हुई है और जिनमें ब्लड सप्लाई भी रिच है. द सेल्स which form the wall of alveoli are called pneumocytes. Pneumocytes or the wall of alveoli also have some enlarged cells which are called pneumocyte second cell. The pneumocyte second secretes a phospholipid lecithin. Pneumocyte second secretes lecithin, and lecithin acts as a surfactant and reduce the surface tension of alveoli. यहां पर आप दोबारा सुनेंगे एक बार. Each lung have number of air sacs, and each air sac have 3 to 4 alveoli. The wall of alveoli is thin with rich supply of blood. The wall is consist with simple squamous epithelial cells. The cells are called pneumocytes. They also have some enlarged cells. They are called pneumocyte second, and pneumocyte second secretes a phospholipid lecithin which acts as a surfactant and reduce the surface tension of alveoli and make them non-collapsible, जो इन्हें पिचकने से बचाते हैं. Our both the lungs have about 300 millions of alveoli. हमारे दोनों लंग्स में लगभग कितने हैं, 300 millions alveoli हैं. तो यहां पर अपन ने देखा स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ थोरेसिक कैविटी. इसके बाद अपन ने अभी देखा है स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसके बाद
steps which involve in respiration. Steps involve in respiration. First, external respiration, or we can say breathing. Breathing means inhalation of atmospheric air and exhalation of pulmonary air, also called pulmonary ventilation. First step of respiration is breathing, also called pulmonary ventilation, means exchange of gases between atmosphere and lungs. Second step, diffusion of O2 and CO2 between alveoli and ब्लड कैपिलरीज. सेकंड क्या होगा, लंग्स की एल्वोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होगा. थर्ड स्टेप में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज and also from tissues to lungs. फोर्थ स्टेप में फिर डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन ऑफ O2 and CO2 कहां पर, बिटवीन टिश्यूज एंड ब्लड कैपिलरीज. और फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी द लिविंग सेल्स यूटिलाइज द ऑक्सीजन, प्रोड्यूस एनर्जी इन विच द ग्लूकोज इज ब्रेक्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो सबसे पहले ब्रीदिंग, फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज. थर्ड स्टेप में क्या आएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज. उसके बाद क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द टिश्यूज एंड ब्लड कैपिलरीज. और लास्ट स्टेप क्या आएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होगा, ग्लूकोज इज ब्रेक्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP. नेक्स्ट, अब अपन प्रोसेस देखते हैं ब्रीदिंग. ब्रीदिंग ब्रीदिंग में आपको बताया दो ही प्रोसेस हैं, इनहेलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर. द इनहेलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड inspiration and exhalation is also called expiration. Inspiration and expiration. तो फर्स्ट स्टेप अपन देखते हैं, इंस्पायरेशन. इंस्पायरेशन मीन्स entrance of atmospheric air into lungs. एटमॉस्फेरिक एयर का लंग्स में इंटर होना ही क्या है, इंस्पायरेशन है. इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आर इन्वॉल्व इन इंस्पायरेशन. तो सबसे पहले क्या होगा,
contraction in radial muscles of डायफ्राम। डायफ्राम की रेडियल मसल्स में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। डायफ्राम कैसा होगा? फ्लैट। सो दैट द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity is increased in antero-posterior axis. During that time, contraction in external intercostal muscles, so that ribs and sternum pushed outwardly and upwardly, and diameter of thoracic cavity is increased in dorsoventral axis. dorsoventral axis. यहां आपको पहले बताया एनी चेंजेस इन थोरेसिक कैविटी डायरेक्टली अफेक्ट्स द लंग्स। तो जब डायमीटर थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज होगा तो लंग्स आर एक्सपेल्ड एंड द इंट्रा pulmonary pressure, intrapulmonary pressure is decreased. अब क्या होगा कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, लंग्स में भरी वायु का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, और इस कंडीशन में क्या होगा? एटमॉस्फेरिक एयर enters into lungs and this process is called inspiration. इंस्पायरेशन का मतलब क्या हुआ कि एटमॉस्फेरिक एयर का लंग्स में एंटर होना। तो यहां पर क्या हुआ? सबसे पहले डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम इट बिकम्स फ्लैट एंड द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity is increased. During that time the external intercostal muscles are also contracted so that the diameter of thoracic cavity is increased. Lungs are expelled so that the intrapulmonary pressure is reduced and the atmospheric air enters into lungs and the process of inspiration is completed. After then the expiration, during expiration means remove the pulmonary air इनटू एटमोस्फियर, यानी लंग्स की जो एयर को एटमोस्फियर में रिमूव करना क्या है? एक्सपायरेशन। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्सपायरेशन। ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग मीन्स टाइडल respiration, tidal respiration. During normal breathing, the diaphragm or the muscles of diaphragm and external intercostal muscles are relaxed up to their normal position, so that the diameter of thoracic cavity also becomes normal and intrapulmonary pressure is increased so that the pulmonary air is expelled out from lungs. यहां पर क्या होगा? केवल टाइडल रेस्पिरेशन के दौरान रेस्टिंग स्टेज में केवल डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स केवल अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। नॉर्मल पोजीशन में आएंगे इसका मतलब हमारी थोरेसिक कैविटी का डायमीटर भी नॉर्मल होगा और लंग्स की जो एयर है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होगा, तो लंग्स की एयर है वो सीधी क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। बट ड्यूरिंग forceful breathing, during forceful breathing the internal intercostal muscles
are also contracted so that expiration is also deeply occurs. तो यहां पर नॉर्मल ब्रीदिंग में एक्सपायरेशन में किसी मसल्स का कोई योगदान नहीं होगा, लेकिन फोर्सफुल ब्रीदिंग में कौन इन्वॉल्व होंगे? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी इन्वॉल्व होंगी। तो यहां पर आप देखेंगे, देखें ब्रीदिंग में एक तो है नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो यहां पर नॉर्मल ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस because diaphragm muscles and external intercostal muscles are involved in this process, but the expiration is passive process. लेकिन during forceful breathing the inspiration and expiration both are becomes active process, because during forceful expiration the internal intercostal muscles are involved in this process. तो नॉर्मल ब्रीदिंग में तो इंस्पायरेशन एक्टिव है, एक्सपायरेशन पैसिव है, लेकिन फोर्सफुल ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन तो एक्टिव है और एक्सपायरेशन भी क्या है? एक्टिव है। It means inspiration is always an active process and expiration is active only during forceful breathing. तो ये अपन ने देखा इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब अपन देखते हैं कि हाउ मच एयर इज एक्सचेंज विद बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। कितनी एयर अपन एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में एक्सचेंज करते हैं और कितनी एयर को एक्सचेंज करने में वी आर कैपेबल। तो अपन देखते हैं वॉल्यूम ऑफ वेंटिलेटेड एयर, वॉल्यूम ऑफ वेंटिलेटेड एयर। तो यहां पर आप देखेंगे इधर देखते हैं अपन वॉल्यूम ऑफ एयर इन मिलीलीटर और इधर ले लिया अपने टाइम। यहां पर देखें नॉर्मल ब्रीदिंग में जो कर्व होगा नॉर्मल होगा, बट फोर्सफुल इंस्पायरेशन में यह कंडीशन होगी और फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कर्व यूं होगा, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग। और ये जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड बाय रेस्पिरोस्कोप। अब यहां पर आप देखेंगे दिस वॉल्यूम, the volume of air which is ventilated during normal breathing is called tidal volume, and tidal volume is about 500 ml, 2000 और 3000 के बीच में tidal volume। It means normal breathing में हमारे lungs और atmosphere के बीच कितनी एयर एक्सचेंज हो रही है? 500 ml। नेक्स्ट, the extra volume of air which is inspired during forceful inspiration is called inspiratory reserve volume, IRV, and it is about 3000 ml। जब भी अपने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया तो कितनी एक्स्ट्रा एयर रिसीव किया अपन ने? 3000 ml। इट मीन्स
आवर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी, IRV प्लस TV, तो कितना हो गया 3000 प्लस 500 ml। जब भी फोर्सफुल इंस्पायरेशन होगा तो वी कैन रिसीव अबाउट 3500 ml एयर। नेक्स्ट, द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड विच इज अबाउट 1100 ml। कितनी एक्स्ट्रा एयर अपने रिमूव की, 1100 ml। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आवर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज ERV प्लस TV। ERV इज अबाउट 1100 ml प्लस TV इज 500 ml 1600 ml। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3500 ml, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी 1600 ml। अब देखिए, द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड एटमोस्फेयर ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीथिंग। फोर्सफुल इंस्पायरेशन हो रहा है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो रहा है, इसको अपन बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी क्या होगा, IRV प्लस TV प्लस ERV। IRV कितना 3000, TV 500, ERV 1100, तो कितना हुआ 4600 ml। इट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स मीन्स फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुली क्या हो रहा है, एक्सपायरेशन। तो जितनी एयर यहां पर एक्सचेंज हो रही है वो है वाइटल कैपेसिटी। कितना भी फोर्सफुल एक्शन किया जाए लंग्स में कुछ एयर तो हमेशा रहेगी। इट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम इज अबाउट 1200 ml। यानी फोर्सफुल ब्रीदिंग के बाद भी लंग्स में हमेशा करीब 1200 ml एयर रहती है। इट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। सो देन द टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी इज 4600 ml and residual volume is about 1200 ml. So then the total capacity is about 5800 ml or about 6 liter. But it can be increased by exercise. यह है total capacity. But in normal condition, this air is remains in lungs. इतनी एयर लंग में हमेशा रहेगी। इसको अपन बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू ERV प्लस RV। ERV 1100 ml प्लस RV 1200 ml इज इक्वल टू 2300 ml air is remains in lungs after expiration in normal breathing। तो यहां पर कुछ वॉल्यूम्स हैं। देखिए टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल कंडीशन में जो एयर एक्सचेंज हो रही है टाइडल वॉल्यूम जो करीब कितना 500 ml, और फोर्सफुल इंस्पायरेशन जो एक्स्ट्रा एयर अपन ने रिसीव की इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ERV and TV 3500 ml। Expiratory reserve volume, the extra volume of air which is expired during forceful expiration, expiratory reserve volume is about 1100 ml. So then the expiratory capacity is ERV plus TV about 1600 ml, and it is also called vital capacity of lung. The vital capacity of lung is inspiratory reserve volume plus tidal volume plus
expiratory residual volume, it is about 4600 ml. Next, the amount of air or the volume of air which remains in lungs after forceful expiration is called residual volume, which is about 1200 ml. So then the total capacity of lung is about VC यानी vital capacity plus residual volume. तो कितना हो गया? About 6 liter. But it can be increased by exercise. But in normal condition में the amount of air which remains in lung is called functional residual volume, and functional residual volume is expiratory residual volume plus residual volume. It is about 2300 ml. तो ये है डिफरेंट वॉल्यूम्स. यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है? देखें, मैच द कॉलम. तो एक कॉलम में दे दिए कैपेसिटी और दूसरे दे दिए इनके वॉल्यूम, या फिर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, या फिर इन वॉल्यूम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, है ना. ये सारा है वॉल्यूम ऑफ वेंटिलेटेड एयर. अब नेक्स्ट में अपन देखते हैं कि अब क्या हुआ कि सबसे पहले अपन देखा स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद में प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, उसके बाद कितनी एयर अपन एक्सचेंज कर रहे हैं और कितनी एयर को एक्सचेंज करने में वी आर कैपेबल. ठीक है, तो ये है डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम. अब जब वेंटिलेशन हुआ, जब ब्रीदिंग हुई तो उसके बाद में सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? डिफ्यूजन ऑफ गैसेज. कहां पे? बिटवीन एल्वेओलाई ऑफ लंग्स एंड ब्लड कैपिलरीज, एंड नेक्स्ट बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड सेल्स ऑफ टिश्यूज. तो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, जो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. थैंक्स.